जी ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, कैट्स फार्मा का और तमाम लोगों का जो इसमें शरीक हैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने रमज़ान और डायबिटीज़ के अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। ये तकरीबन 20 से 1 मिनट की प्रेजेंटेशन है। आई ट्राई कि मैं 20 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर ना जाऊँ। This is my disclosure. Majority of the material is from IDF DAR guidelines, and there is nothing else that I have to disclose. Ground rules, question and answer बाद में लिए जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो जो चैट बॉक्स है उसके अंदर भी सवाल दे सकते हैं। ज़रूरत क्या है? रमज़ान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ऑल्दो इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द टाइम कि रमज़ान से रिलेटेड गुफ्तगू की जाए, क्योंकि लोग ऑलरेडी फास्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग भी रोज़ा रख रहे हैं उनको मज़ीद फ़ायदा हो जाएगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी और जो पेशेंट्स हैं उनको भी, कि अगर बेहतर तौर के ऊपर मालूमात उनको फराहम कर दी जाए। These are the learning objectives. By the end of this presentation, participants should be able to understand following during Ramadan fasting. How should we risk stratify patients during Ramadan? What is the diet and exercise plan? How to manage medicine? When to break fast? What is the frequency of sugar monitoring? And in the current scenario of COVID-19 and the Ramadan with diabetes, what we need to do. These are the 6 key points which we need to basically focus on in the educational program. First and the foremost is risk quantification or stratification. Then blood glucose monitoring, how frequently it should be monitored in which risk group. Fluid and dietary advice, which should be given to all patients. Exercise advice. Then medications, how should they be adjusted, and when to break the fast. So risk stratification, when we do, it should be done ideally 1 to 2 months before Ramadan. And it includes history, including hypos and hyperglycemia, economic and socio-economic, so educational status of the patient, drug histories, his symptoms, signs, and glycemic record for fasting and 2-hour postprandial, recent A1C, blood pressure record, recent lipid profile, renal functions, urine complete examination to rule out any renal pathology. These are basically the risk factors in which the patients should be divided if they are fasting. High and the very high risk group patients, these are advised not to fast. Moderate risk patients, they should do some changes in their medication, and they should contact their healthcare professionals before starting to fast. And the low risk group patient can fast without any advice from the healthcare professional. When we go for the risk quantification, so it is basically based on the type of diabetes, medications which are being used, individual hypoglycemic risk, presence of complications and comorbidities, patient education, individual social and work circumstances, previous Ramadan experience. This is also very important. But fasting in a previous year does not mean that you can easily fast in this year as well. So you have to go through a risk evaluation. According to IDF DARC guidelines, patients who are at moderate or to low risk group are well controlled, are on any of the following treatments. So they are on diet alone, metformin, acarbose, thiazolidine diones, DPP-4, second generation sulfonylureas, GLP-1 therapies, and SGLT2 therapies. So all these patients are included in the low risk group along with the basal insulin. So the conditions associated with very high risk group for adverse events, they include patients with having severe hypoglycemia within the last 3 months prior to Ramadan, patients with a history of recurrent hypoglycemias and hypoglycemia unawareness, similarly sustained poor glycemic control, hyperglycemic complication, ketoacidosis within last 3 months, type 1 diabetes, any acute illness which includes COVID-19, symptomatic COVID-19, and hyperosmolar, hyperglycemic coma within the last 3 months, and patients who perform intense physical labor, pregnancy,
in patients on chronic dialysis. So the high-risk group patients, they include patients with moderate glycemic control. They are having an average sugar level between 150 and 300, and A1C less than 9 but more than 7.5. Patients with renal insufficiency up to CKD 3 are included in this group, and patients with advanced macrovascular complications, people living alone who are treated with insulins or sulfonylureas, or people who are just living alone, it in itself is a high risk factor. Patient with comorbid illnesses and old age people with ill health and drugs which can affect the mentation, they are also included in the high risk group. So, what are the risks and complications which can occur in these patients? Include dehydration, hypoglycemia, hyperglycemia, and along with that, ketoacidosis or thrombosis. So, what diet should someone adopt in the month of Ramadan? Dietary advice basically depends on the weight of the patient, whether the goal is weight loss or weight maintenance, cultural and personal preferences of the patient. Ideally, 45 to 50% of the total calories should be taken from carbs, around 20% from proteins, and the remaining 30% from the fats, which preferably should be monounsaturated or polyunsaturated fats. And I think my learned colleague, Dr. Tamina, is going to tell us more about the dietary advice. So, 6 to 8 glasses of water, depending on the patient condition, should also be taken. This picture I have taken from IDF DAR guidelines, which shows that there is a difference between the diet of men and women, and especially depends on the if the height is small, then again there is a reduction in the total calorie intake. Men usually require between 1800 to 2200 calories, and on the lower side, if they want to reduce weight, women similarly require 1500 to 2000 calories, and similarly, they should be taking less than 1500 if they want to reduce. And women who are short in stature, they should be taking even less than 1500 calories per day and going below 1200 times in when they want to reduce further. This is a very good diagram which suggests that around 50% of the total calories should be taken at iftar time, around 40% should be taken at sahri time, and another 10 to 15% can be taken in the snacks, which can be taken after Taraweeh or and night time whenever the patient wants. And there is a split basically that Sahri should always be taken in patients who are diabetic and they want to fast. So, how much exercise? So, exercise during Ramzan basically depends on encouraging and advocating light to moderate exercise to diabetics during Ramzan, keeping in mind uh, the individual situations. And exertion involved in Taraweeh prayer should be included in exercise. Heavy exercise is not recommended during Roza due to risk of hypoglycemia and dehydration. So, what are the treatment modifications? As we know, basically, that no modification is required in cases of well controlled diabetics who are taking either metformin, DPP-4s, thiazolidine diones, acarbose, SGLT2 drugs, and GLP-1 agonist, as long as they have been dose titrated at least 6 weeks prior to Ramzan. So all of these drugs, if someone is taking six at least 6 weeks prior to Ramzan or 3 months prior to Ramzan, then probably it is good for them to they can embark on starting with the Rosa. If they are new in starting these medication, then they need to consult their healthcare professional. These two drugs, sulfonylurea and insulin, they are specifically requiring more close monitoring, and they require interaction with the healthcare professional in the form of dose adjustment. And in that as well, as you can see in this diagram, that older drugs in this class, which include glibenclamide or Dynel, which we usually use, they are likely to uh, carry a high risk of hypoglycemia, and they should be avoided. Whereas the second generation sulfonylurea, which include glimepiride, they can be easily taken in the patients. And it depends whether someone is taking just once a day or he or she is taking twice a day.
the dose of the sulfonylurea. If someone is taking just once a day, then and the sugar levels are controlled, then it's just required that he should start taking this medicine at iftar time instead of morning at breakfast, and keep monitoring the blood glucose levels. Similarly, if someone is taking twice daily sulfonylurea, then what is recommended is that iftar dose should remain the same, whereas the Sahri dose requires reduction according to the blood glucose level. And for that, probably it's best to monitor the blood glucose level, contact with your healthcare professional who can reduce the dose according to the requirement of the patient and the blood glucose levels which patient has monitored. So, briefly, sulfonylureas are the drugs the second generation sulfonylureas like glimiprides and gliclazide, they can be used in safely in patients with who are in moderate risk group, and they do not taking these medicine do not put the patient in a relatively high risk, so they can be safely used. When we are talking of insulin adjustment during Ramzan, then we have to divide, because there are different types of insulin. Now, long and short acting insulin, when we are talking of long acting insulins like Glargine, or we are talking of Detamir or Deglutec, which are usually taken just once in a day, then it is preferable that they should be taken at iftar time. And also, it is required that if the condition permits, then the dose of the insulin should be reduced by about 15 to 30%. If someone is taking a short acting insulin like regular insulin, or is taking an ultra short acting insulin, then of course it depends how many times it's being taken. So if he is taking twice a day, then the afternoon dose or the needs to be omitted. The dinner or iftar time dose has to be taken as such, and the lunch or the breakfast or sehri dose has to be reduced by about 25 to 50%. And there is a significant chance that if the high dose is taken, then because of हमारे यहाँ की conditions ऐसी हैं कि उसमें गर्मी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो बढ़ते जाने का इम्कान है, so it is likely that he may suffer from hypoglycemia. So monitoring sugar will be of paramount importance in these situations. If someone is taking a pre-mixed insulin, like जो मुख्तलिफ मौजूद हैं 70-30s available and from different companies. So if it is taken once in a day, no need to adjust any dose, just start taking this at the iftar time. If he is taking the medicine at twice a day, then the higher dose, I mean, like if someone is taking total 30 units and 20 units are taking in the morning and 10 units at the iftar time, at the night time, then it should be shifted. Like iftar time dose should be 20, and the morning time dose should be reduced by 25 to 50% and can be taken at sehri time. Three time dose should be reduced. Of course, afternoon dose cannot be taken, and the iftar dose should be higher, and sehri dose should be reduced by 25 to 50%. So advice to these patients is in the two highest categories of risk. They are advised not to fast. But of course, if they want to fast, then we must respect them, and we have to adjust the medication according to the patient wishes. But keeping safe the rosa is very important, and the patient requires to monitor his blood glucose level. So monitoring blood glucose in Ramadan, although this picture which I am showing you, it does not fit into every patient. It shows that 7 times sugar monitoring is required, but this probably is more required for a very high risk patient who wants to fast. These 7 times are: one before Sahri, two is 2 hours after Sahri, three is at the midday 12, and four is around 3 or 4 p.m. Five is just before the iftar, and six is 2 hours after the iftar time. And seven is basically any time of the day when patient feels that he or she is having hypoglycemic symptoms. So he should document and decide about the sugar level. So these are not required to be done in every patient.
especially in the low or moderate risk patients. But for high and very high risk patient, this monitoring will be of paramount importance to make his rosa safe. So breaking fast, whenever the blood sugar goes below 70 milligram, then it is likely that it is going to cause harm and the rosa should be broken. But again, if the time to iftar is very short, then you can do some maneuvers to help this patient save his fast. Similarly, blood glucose level above 300 also is not an absolute indication to break fast, but it increases the chances of complications in these patients. So post-Ramadan follow-up is very necessary for all these patients. It's a 3-day festivity of overindulgence called Meaty Eid. So post-Ramadan follow-up meeting with your healthcare professional is required. Safe fasting for 1 year does not automatically make you a low risk for the next year due to progressive nature of the disease, and with correct advice and support from HCP, most of the people with type 2 can fast safely during Ramadan. Just to show you a summary of this educational cycle, the key components: risk quantification, glucose monitoring, fluid and dietary advice, and exercise advice, medication adjustment, and when to break fast. Some answers to the questions regarding COVID-19. Guidance on the spreading of the virus is necessary for everyone. Diabetic patients who are completely asymptomatic or very mildly symptomatic, they, uh, they need not to worry and they can fast easily, but they need to know how this virus is spreading it. They need to take the precautionary measures, and they need to know the features as well, that high-grade fever, dry cough, and body aches and pains and fatigue are the features of this virus. And once respiratory embarrassment starts, then they need to contact their doctor immediately. Severity of the infection from mild, severe to critical. Diabetic patients, because if they are complicated, are at high risk of going into some sort of complication. And what to do if chance of infection? Don't rush to hospital. Take telemedicine opinion. Different hotlines are available, provided by government in different provinces. Quarantine and avoid virus by sensible measures like hand wash, sharing food, cuffing etiquettes, etc., and home-based exercises to continue and boosting your immunity with good diet. Quarantine strategies include hygiene, diet and exercise, and medication supply, especially in these patients. The medical supplies should be available for because you never know that due to different lockdown situations, these patients might suffer from lack of storage stockage of their medication. So keep a supply of your 1 month medicine supply as well as the blood glucose strip supplies, so that you can easily monitor things even if the stores are closed. And relaxation, do constructive work, and confirm virus. If it is confirmed, then get connected, contact with the relevant medical personnel. Quarantine requirements to be fulfilled, and hydration should be maintained. Monitoring glucose should be done. Monitoring temperature should be done. Ketones should be monitored if insulin dependent, and follow recommendations of your doctor strictly. And here I would like to mention about SGLT2 drugs, because the things coming out of because they are likely to pass glucose in the urine. So even ketoacidosis can be present without symptoms. So usually what is recommended is that if someone is not taking SGLT2 drugs, they should not be started in this situation with the COVID-19 as a first line treatment. And ideally, such patients should be taken those medications which are relatively safe. Thank you very much. And with this, I would like to hand over the mic to the host. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Tehmeena Rashid, and I'm working as a clinical dietitian at National Institute of Diabetes at Dow University of Health Sciences. Thanks a lot for me to give presentation on this topic. So, dietary advice for people with diabetes during Ramadan.
So what are the aims and objectives of medical nutrition therapy during Ramzan? ये सबसे पहले इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, पेशेंट के लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। आपको पता हो कि पेशेंट्स की क्या डाइटरी हैबिट्स हैं, किस एज ग्रुप को वो बिलोंग करता है, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसकी चॉइसेस क्या हैं, वो किस तरह की चॉइसेस हेल्दी चॉइसेस को अडॉप्ट कर सकता है, उसकी कोमोबिडिटीज क्या है, ये सारी चीजें रखते ही आपको डाइट प्लान करनी होगी। एक 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 जो तरह की डाइट है वो सबके लिए आप उसको हेल्दी चॉइसेस सबके लिए बता सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इस पेशेंट के लिए क्या चीज सबसे अच्छी है, या आप जब उससे इंटरव्यू लेते हैं और उसके असेसमेंट करते हैं तभी आप सबसे अच्छा उसको प्लान दे सकते हैं। हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि वो एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज ले रहा हो, बैलेंस हो रहा हो मैक्रो न्यूट्रिएंट का, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी सही तरीके से जा रहे हो, प्रोटीन्स भी जा रहे हो, फैट भी जा रहा हो, कार्बोहाइड्रेट का कौन सी वाली वो चॉइस देता है, उसको कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन सही पता हो, उसको ये पता हो कि स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फास्ट रिलीजिंग का क्या नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब वो रोज रमजान में अपने रोजे स्टार्ट कर रहा हो तो सारी चीजों से उसको अवेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि पेशेंट अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक को बिल्कुल प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि पोस्ट पेरेंटल हाइपरग्लाइसीमिक इवेंट्स ना कि उसकी तरफ ना जाए। तो इसके लिए ही बहुत जरूरी है कि उसको अपनी चॉइसेस के बारे में अच्छी तरह अवेयर होना चाहिए। और साथ साथ अगर कोई कोमोबिडिटीज है, हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडीमिया, तो डाइटरी प्लान उन सब चीजों को रखते ही बनाया जाएगा। अब जनरल डाइटरी गाइडलाइंस क्या है, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअलाइज्ड और अकॉर्डिंग टू पेशेंट होना चाहिए। अपने एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरीज का इंटेक हो रहा हो कि अगर किसी को 1200 कैलोरीज की नीड है, किसी को 1500 अकॉर्डिंग टू बीएमआई, पेशेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट वेट सर्कमफ्रेंस, वेट रिड्यूस करना है, वेट गेन ना करे, ये सारी चीजें देखते हुए आप डाइट प्लान को बनाएंगे। अच्छा, और उसके बाद ये जितनी भी कैलोरीज ले रहा हो वो फिर उसके बाद अफ्तार में, डिनर में और सहरी के अंदर उसकी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अगर उसको डिनर की जरूरत नहीं है, 1 to 2 स्नैक्स अगर उसके लिए काफी है, तो वो स्नैक्स के ऑप्शंस क्या होने चाहिए, ये सारी बातें आपके पेशेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब स्नैक्स के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं ये मैं आगे जाके भी बात करूंगी, लेकिन इसके अंदर फ्रूट्स हो सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, ये हम आगे जाके हम बात करेंगे। 1200 to 200 कैलोरीज का स्नैक जो है बहुत अच्छा है, और उसके अंदर 100 से लेकर 200 कैलोरीज के अंदर आपका कोई फ्रूट का पोर्शन आ सकता है, आपको एक छोलों की चाट आ सकती है, आपके हैंडफुल ऑफ नट्स आ सकते हैं, जो कि एनर्जी जिसके अंदर कैलोरीज भी कम है, और जो कि एनर्जी जो के साथ साथ आपकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। अब जैसे कि हमने पहले हाइड्रेशन की बात हो रही थी, तो हाइड्रेशन का बिल्कुल पेशेंट को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि उसको अफ्तार से लेकर बेड अपना अगली सहरी तक कितना पानी लेना है। इसके लिए मैं पेशेंट से हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप अपने एक वाटर की बॉटल बना लीजिए जिसके अंदर आपकी चिट लगी हुई हो, ताकि आपको पता हो कि आपने कितना पानी पी लिया, और अगर आपको नहीं भी याद रहा तो आपके घर वाले आपको याद दिलाते रहे ताकि आपकी डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा ब्लड शुगर को अफेक्ट कर रहा होता है। ये अब इसकी कोई कोई खास वो नहीं है कि कितना अमाउंट पे लेना चाहिए। जो 130 ग्राम्स आपकी एक नॉर्मल आदमी की रोजाना की जरूरत है, 130 ग्राम्स। इसके अलावा जितनी भी उसको कैलोरीज अपनी पूरी करनी है 130 ग्राम्स के अलावा, वो प्रोटीन और अच्छे सोर्सेज ऑफ फैट से कर सकता है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन, एक तरीका हम ये रखते हैं कि हम 130 ग्राम्स पे भी जाके फिर बाकी उसकी कैलोरी जो है अच्छे प्रोटीन और फैट से पूरे करते हैं, या फिर जनरली जो एक हमेशा से चला आ रहा है कि 40 to 50% आप कार्बोहाइड्रेट दें, 25 to 30% आपका प्रोटीन हो और 30 to 35% फैट हो। लेकिन अब जो है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की 2019 की गाइडलाइंस के मुताबिक देयर इज नो एनी आइडियल परसेंटेज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ओके, इट्स अप टू द, ये हम पेशेंट को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना उसका 130 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा उसके प्रोटीन और फैट्स के अंदर उसकी कैलोरीज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। लेकिन प्रोटीन और फैट जब हम जिस तरह से भी डिवाइड कर रहे हो पूरी कैलोरीज में, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो सोर्सेज ठीक होने चाहिए और ऑप्शन सही होने चाहिए। कि अगर फैट बढ़ा दिया तो कोई सैचुरेटेड फैट से ना हो, बल्कि सोर्सेज उसके अंदर मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। अच्छा, इनटेक जो है वो कल्चरल सेटिंग के मुताबिक होना चाहिए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट का इंटरव्यू लिया हो कि उनकी अफ्तारी में किस तरह के ऑप्शंस बनते हैं, किस तरह के आप उसको हेल्दी ऑप्शंस इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं।
कार्बोहाइड्रेट की जो भी आप ऑप्शंस देंगे वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शंस होने चाहिए। अब उसके अंदर कौन कौन से स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि जिसके अंदर फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है, जैसे चने हैं, छोले हैं, दालें हैं, नट्स हैं। आपके नट्स आपके फैट्स के अंदर भी, फैट्स के अंदर हमारे फैट्स के ग्रुप के अंदर आते हैं, लेकिन फाइबर कंटेंट उसका अंदर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो जब कार्बोहाइड्रेट के साथ लिए जाते हैं तो उसके अंदर कुछ फैट का अमाउंट और फाइबर के अमाउंट होने की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट के एक्शन को भी स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर साथ में आपकी सैलेड्स बहुत ही जबरदस्त ग्रुप है, ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट बहुत ही कम होता है। जैसे कि जब भी हम एक्सचेंज लिस्ट देखते हैं तो एक्सचेंज लिस्ट के अंदर हम जो हमारा वेजिटेबल का जो पोर्शन आता है वो हम अगर वन सर्विंग की बात करें तो सिर्फ 5 ग्राम्स आपकी वन कप ऑफ वेजिटेबल्स के अंदर सिर्फ 5 ग्राम्स ऑफ तक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जितना ज्यादा आप अगर अपने सैलेड्स का पोर्शन बढ़ा भी देते हैं नॉन स्टार्ची जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हमारी कौन सी है, पोटैटो है और पीज है, और हमारे साथ में हमारे जो ये भुट्टे हैं ये हम तीनों को हटा देंगे, लेकिन साथ में जितनी भी हमारी ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर हमारे कुकम्बर्स आ जाते हैं, हमारे टोमेटोज आ जाते हैं, हमारे तमाम के तमाम हमारी ये कैबेज की फैमिली की वेजिटेबल्स आ जाती हैं, हमारे ये सैलेड लीव्स आ जाते हैं। इसका इनकॉर्पोरेशन का फायदा ये होता है कि ना सिर्फ ये शुगर्स को कंट्रोल करने में फायदा कर रहे होते हैं, बल्कि इनकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत ही जबरदस्त होती है। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी आपको यहाँ से मिल रहा होता है, फाइबर का अमाउंट मिल रहा होता है। तो हमें हमें हमेशा जब भी हम पेशेंट को अपने कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शंस बता रहे हो तो उसको हम नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जरूर कहें, ठीक है। और जब भी हम एक्सचेंज लिस्ट के अंदर फिर हम देख रहे होते हैं कि हमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शंस देने पेशेंट को जिसके जरिए वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करे और कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी उसकी नीड है उसको पूरी करे, तो उसमें से आपको होल व्हीट ग्रेन्स की तरफ जाना है, जिसमें चने, छोले, दालें, लाल चक्की वाले आटे की रोटी हो गई, इसमें आपके ब्राउन राइस हो गए, और किसको आपको कम से कम करना है उसके अंदर व्हाइट राइस हो गए, आपके शुगरी तमाम किस्म के ड्रिंक्स हो गए, शुगर हो गई, गुड़ हो गया, ठीक है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के अंदर सफेद आटा हो गया। तो इसको जितना मुमकिन हो सके इसको अवॉइड करें। तो पेशेंट जब आपके पास से जाए तो उसको जितना भी आपने कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, चाहे आपने आपने उसकी कैलोरीज में से आपने 40 टू 45% भी दिया, उसको अपने ऑप्शंस अच्छी तरह से पता होने चाहिए कि मुझे अगर अगर कितनी रोटी अलाउ की गई है तो आटा कौन सा अलाउ किया गया है, मुझे अगर चने, छोले, दालें मेरे अगर कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शंस में से अलाउ किया गया है तो उसका कितना पोर्शन अलाउ किया गया है, मुझे अगर आटा मना किया गया है तो उसकी सफेद आटा तो उसका रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें जब वो उसको इस सारी चीजों के बारे में अवेयर होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की आपसे कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल क्यों जरूरी है, इसी तरह फ्रूट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है कि भाई फ्रूट्स तो पेशेंट जो जब भी मीठे की बात आती है तो वो अपने अब वो मुंह की मिठास को समझते हुए फ्रूट्स को या तो बंद कर देते कंप्लीटली या फिर कुछ फ्रूट्स की तरफ आ जाते हैं। देखिए फ्रूट्स, दो फ्रूट्स के अलावा जैसे कि हमारे वाटरमेलन हो गया, उसके उसके साथ भी अगर लोड को भी कम रखा जाए तो थोड़ा बहुत इसका अमाउंट लिया जा सकता है। एक हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक हमारा ग्लाइसेमिक लोड है, जो हमारे थोड़े से ग्लाइसेमिक लोड में ऊपर की, हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ऊपर की तरफ हमारे फ्रूट्स आते हैं, उसका पोर्शन हमें कम करते हुए हमें जरूर उसको इंक्लूड रखना चाहिए, क्योंकि उनकी फ्रूट्स की न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम जैसे कि हम दूसरे कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे कि हम स्टार्ची, हम आटे की इजाजत दे रहे हैं, हम इस तरह से चने, छोले, दालों की इजाजत दे रहे हैं, इसी तरह से हम फ्रूट्स भी बिल्कुल अलाउ करेंगे। क्योंकि हम जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे होते हैं उसके अंदर हमारा स्टार्ची वेजिटेबल्स भी इंक्लूड होता है, उसके अंदर हमारा ये तमाम की तमाम हमारा चने हैं, छोले हैं, हमारे ये भी अलाउड हो रहा होता है, आटा भी अलाउड हो रहा है, इसी तरह से बिल्कुल फ्रूट्स भी अलाउड हो रहे होते हैं। अगर हम ये बात करते हैं कि 15 ग्राम्स की हमारी चॉइस कार्बोहाइड्रेट की क्या है, तो उसके अंदर जैसे आधी रोटी आपकी चक्की वाले आटे की आती है, इसी तरह से आपका एक सेब भी आ जाता है, ये छोटा केला भी आ जाता है। तो पेशेंट को ये पता हो कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की रेंजेस के अंदर आपके कौन कौन से फूड ग्रुप्स फॉल करते हैं, वो किसी एक चंद खानों के साथ ही अपने मिसकंसेप्ट अपना दिमाग में आइडिया ना बना ले कि फ्रूट्स नहीं खाने, चने, छोले, दालें जितना दिल चाहे खा सकते हैं, किसी फूड ग्रुप को वो मिस ना करे, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर उसको जा रहे हो और उसकी फूड बिल्कुल बैलेंस डाइट वो ले रहा हो। तो पेशेंट आप जब भी आपके पास से जाए उसको ये पता होना चाहिए कि उसके कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसका
स्टार्ची वेजिटेबल्स भी आएंगी, उसका फ्रूट ग्रुप भी आएगा, उसका मिल्क ग्रुप भी आएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। जितना उसका रोटी का पोर्शन का ख्याल रखना जरूरी है, उतना फ्रूट्स का पोर्शन का भी ख्याल रखना जरूरी है। जब वो रोटी के पोर्शन को भी कट डाउन करके खाए, फ्रूट के पोर्शन को भी कम करके खाए, लेकिन वो दोनों ग्रुप, ले वो मिल्क ग्रुप भी, ताकि उसकी अंदर किसी गजाइयत की कमी ना आए। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जो मैं पूरी, इसके अंदर मैं सारे सारे सोर्सेज की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर मैं स्टार्ची फ्रूट सब की बात कर रही हूँ, उसके अंदर से बेस्ट कौन से हैं, जो मैंने पहले से आपकी बात की, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और जिसकी अंदर हमारा फाइबर का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है। फ्रूट्स हम सारे पोर्शन विद इन पोर्शन अलाउ करेंगे। हमारे लिए जो हमारी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है वो बेस्ट है। वो क्यों है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो सबसे खराब है वो मैंने आपको बता दिया कि शुगरी बेवरेजेस है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है और वाइट तमाम वो चीजें जो जो कि सफेद आटे से बनी हुई हैं। अच्छा, ये कुछ टिप्स हैं। जी ठीक है जी। तो फिर हम सवाल जवाब की तरफ आ जाते हैं। तो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एक तो जो बड़ा कॉमन सा सवाल है आजकल वो इस किस्म का है कि खान में डायबिटिक पेशेंट में अगर कोरोना की डायग्नोसिस हो जाए तो क्या करने की ज़रूरत है। तो इसको समझ लीजिए कि बेसिकली कोरोना के सारे मरीज़ ऐसे नहीं हैं कि जिनको किसी किस्म की दवा लेने की ज़रूरत हो। बेसिकली अराउंड 80% पेशेंट ऐसे हैं जो कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। अच्छा, ये सवाल एक आ रहा है कि इफ अ पेशेंट बिकम्स हाइपोग्लाइसेमिक कैन वी गिव आईवी ग्लूकोज और हाइपरटोनिक टू सेफगार्ड द रोज़ा, एनी फतवा। अच्छा, इस सिलसिले में ना जितने भी हैं वो, एक तो बेहतर तो ये होता है कि हमने किसी मौलाना को, किसी रिलीजियस इल्म रखने वाले को इसमें शामिल किया होता। इसके बारे में जो कंसेंसस है हमारे पास वो ये है कि बेसिकली अगर तो इफ्तार का वक्त बहुत करीब है तो फिर आप उसका रोज़ा बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी उसको इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस कोई चीज़ दे के उसका रोज़ा बचाने की कोशिश कर लें। चंद मिनट रहते हैं इफ्तारी में और से आधा घंटा रहता है, तो फिर तो ये आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें भी आपको मेरे ख्याल है रिलीजियस स्कॉलर से मशवरा लेने की ज़रूरत होगी कि क्या किया जाए। दूसरी जहाँ तक बात है, ये एक और सवाल ये है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं ब्लड शुगर के ज़्यादा रहने की, 300 से ऊपर जाने की। तो जैसे कि हमने अभी इसमें मेंशन किया कि हाइपरग्लाइसीमिया से कीटोएसिडोसिस अगर टाइप 1 है तो उसके होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया है रिसेंटली जो कोरोना से रिलेटेड जो मुख्तलिफ स्टडीज सामने आ रही हैं कि अगर वो टाइप 2 पेशेंट्स भी हुए और उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हुआ और सीवियर डिग्री का हुआ तो ऐसे पेशेंट्स में उनकी इंसुलिन की डिपेंडेंस बढ़ जाती है। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स को भी कीटोएसिडोसिस में जाने का चांस बढ़ जाता है। और क्योंकि शुगर के बढ़ने के साथ यूरिन की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है तो डिहाइड्रेशन, थ्रोम्बोसिस होने का चांस ऐसे मरीजों में बढ़ जाता है। सो रिगार्डिंग जो शुगर का कंट्रोल ज़्यादा रखने का है, बढ़ा हुआ होने पे रोज़ा रखने का है, तो इसमें तो इम्कान इस बात का है कि अगर आपका रोज़ा अच्छी तरह से मेंटेन रह रहा है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली आपकी ज़्यादा रह रही है, जैसे कि हाई रिस्क ग्रुप और वेरी हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, तो उनके अंदर चांस हाइपरग्लाइसीमिया के सेकेंडरीली कीटोएसिडोसिस या डिहाइड्रेशन या थ्रोम्बोसिस होने का। कोरोना के रेफरेंस से ये भी है कि जो SGLT2 ड्रग्स हैं, जैसा कि मैंने एक दफ़ा पहले भी अभी मेंशन किया था कि उनका इस्तेमाल रिलेटिवली कम करने के बारे में कहा जा रहा है। जी डॉक्टर तमीना आप आ गई हैं मेरे ख्याल है ऑनलाइन। Hear you, ma'am. Please start. जी ओके ओके, उसको लगा दो। ठीक है ओके। तो अच्छा, कौन कौन से प्रोटीन के जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल जिसको आपको बिल्कुल डिस्करेज करना है, जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स का अमाउंट ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट जैसे आपका बीफ है, बीफ के साथ जो आपका फैट सबसे पहले तो सैचुरेटेड फैट को समझने की जरूरत है। जमने वाली चिकनाई जो है वो सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी के अंदर आती है। अब जितना भी हम ये हमारे मीट के साथ हमारा ये फैट लगा हुआ होता है, जैसे कि हमारे बीफ है या मटन है, इसके साथ लगा हमारा जो फैट का जो लगा हुआ है ये सारा सैचुरेटेड फैट है, तो इसको बिल्कुल डिस्करेज करना है। साथ में जो हमारा चिकन है, चिकन की जो स्किन होती है, स्किन के अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। चिकन एक लीन मीट है, अगर उसकी आपने स्किन उतार दी है
तो उसमें सैचुरेटेड फैट नहीं है, लेकिन विद स्किन अगर उसको चिकन को यूज किया जा रहा है तो वहां से अगर चिकन ली जा रही है तो आपका सैचुरेटेड फैट का कंटेंट बढ़ेगा। तो प्रोटीन जो भी आप लेंगे उसी के सोर्सेज और उसका ऑप्शंस का बिल्कुल सही तरीके से पता होना जरूरी है। वो अगर इंक्लूड करेंगे कार्ब्स के साथ तो बिल्कुल उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आप उसको इंक्लूड करेंगे तो उससे पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब फैट के ऊपर हम बात करेंगे। फैट जो है हमारा 30 to 35% टोटल कैलोरीज का होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं शुरू से बात कर रही हूँ कि 130 ग्राम्स के अलावा भी अगर आप थोड़ा बहुत फैट बढ़ाना भी चाह रहे हैं तो उसके ऑप्शन जरूर देखेंगे, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आपका ऑलिव ऑयल आता है, आपका सेसमी सीड्स आता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर आपके नट्स आते हैं, लेकिन इसमें भी पोर्शन साइज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 बादाम हमारे तकरीबन 1 चाय की चमची तेल के बराबर होता है, जिसके अंदर 45 कैलोरीज होती हैं। तो अगर नट्स बढ़ाना भी चाह रहे हो तो 1 हैंडफुल नट्स जो है वो इनफ होंगे, अदरवाइज कैलोरीज बढ़ेंगी जिससे वेट गेन होने लगेगा। इसी तरह से अगर आप सहरी के अंदर रोटी देना चाह रहे हैं तो रोटी के ऊपर जो भी ऑयल लगेगा वो 2 to 3 टीस्पून ऑयल जो है उसके अंदर इनफ हो जाए, वो इनफ होगा। इससे ज्यादा जाएगा, डीप फ्राइड पराठे जाएंगे तो फैट का कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है, जैसे म्यूफा और हम प्यूफा को भी इनको ही इनकरेज करेंगे। सैचुरेटेड फैट का मैंने आपको बता दिया कि हमें सैचुरेटेड फैट हमेशा एनिमल से ही हासिल होता है। एनिमल सोर्सेज के अंदर हमारा सारा ये मीट आ गया और सारा दूध की बलाई हमारी आ गई, तो इसको हम डिस्करेज करेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड फैट अगर हमारा बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल के हाई होने के इश्यूज सामने आएंगे। और म्यूफा और प्यूफा के जैसे मैंने आपको सोर्सेज बताए, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पता होना चाहिए, चूंकि फैट का 1 ग्राम 9 कैलोरीज देता है, इसका अमाउंट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे, अपनी जैसे नट्स बढ़ा लिए या ऑलिव ऑयल को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, तो कैलोरीज ओवरऑल बढ़ जाएंगी, जिससे आपका वेट गेन होने के चांसेस बहुत आसानी से और बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड सैचुरेटेड फैट, लीन है, प्रोसेस्ड है, ये सारा हॉट डॉग्स हैं। हमारा ट्रांस फैटी एसिड्स तो बिल्कुल 0% ट्रांस फैटी एसिड्स के ऊपर अब तो गाइडलाइंस कहती हैं कि 0% ट्रांस फैट ओवर टोटल कैलोरीज में होना चाहिए। ट्रांस फैट्स क्या होता है, ये जितना हमारा हाइड्रोजनेटेड ऑयल, हमारे जब ऑयल्स के अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो वो जो मसनूई घी हमारा बनता है, तो जो मसनूई घी है जैसे बनास्पति घी है, ये देखना चाहिए कि पेशेंट आपका ये तो इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि बहुत जब मैं पेशेंट्स की डाइटरी असेसमेंट कर रही होती हूँ तो हमारे यहाँ पेशेंट बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसको तो बिल्कुल ही डिस्करेज करना है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि सहरी किस तरह की होनी चाहिए। सहरी जितनी लेट हो, बिल्कुल अजान के करीब तरीन हो, उतना अच्छा है, ताकि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी सहरी कर लेते हैं, 2 बजे कर ली, 3 बजे कर ली, या 11-12 के करीब इतना हैवी कोई उन्होंने मील ले लिया कि उनकी सहरी नहीं की जाती, जिससे हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स होने के रिस्क बढ़ जाता है। प्रोटीन और फैट का एडिशन बहुत जरूरी है। प्रोटीन के मैंने जो जो ऑप्शंस बताए आपको, लीन प्रोटीन है, चने हैं, छोले हैं, दालें, इसके एडिशन बहुत जरूरी है। फैट्स का होना जरूरी है। जितनी कॉम्बिनेशन में आपके तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट को कॉम्बिनेशन के साथ सहरी होगी, उतना ही हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स होने के चांसेस कम होंगे और एनर्जी लेवल्स देर तक मेंटेन रहेंगे, और साथ में न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी उस मील की बहुत ही जबरदस्त होगी। ठीक है, अब हम अफ्तारी की बात करेंगे। तो अफ्तारी सबसे के अंदर पानी से आप आपके खजूर लें, खजूर बिल्कुल ले सकते हैं। खजूर के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, भाई खजूर नहीं ले सकते। खजूर जो है वो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर आता है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत ही जबरदस्त है, पोटेशियम है उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर आपका थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आयरन भी मौजूद होता है। तो खजूर बहुत ही जबरदस्त चीज है, खजूर से तमाम डायबिटिक्स अपनी सहरी को स्टार्ट करें। उसके अंदर अफ्तारी के अंदर अब जो कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शंस लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर दही बहुत जबरदस्त उनके लिए ऑप्शन है। उसके अंदर उनके लिए जितने हमारे ये हम जो ये अपने चने व छोले वगैरह बनाते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फ्राइड आइटम लेना भी चाह रहे हैं तो एक वक्त में एक ही कोई फ्राइड आइटम लें और उसकी क्वांटिटी को कम रखें। जैसे कि अगर वो रोल लेना चाह रहे हैं तो एक वक्त में एक रोल ही ले लें, या एक वक्त में एक समोसा ले रहे हैं तो एक ही लें। और कोशिश ये करें कि फ्राइड आइटम से वो दूसरे कुकिंग ऑफ मेथड को चेंज करने की उनके अंदर आदत हो कि उसको ग्रिल कर लें या उसको बेक कर लें, ताकि वहां से उनका ऑयल इतना ज्यादा उनको ना मिले जिससे उनकी कैलोरीज ना बढ़े। ठीक है, बिल्कुल शुगरी हैवी डिजर्ट्स को बिल्कुल डिस्करेज करना है। और आप उसको अगर फ्रूट कोई अपने आप को अगर वो फ्रूट अपने आप को डेजर्ट की तरफ लेके लेना भी चाह रहे हैं तो फ्रूट से उनको उसको अपने फुलफिल करने की आदत हो कि भाई उनको जैसे कोई भी उन्होंने फ्रूट का पोर्शन ले लिया,
15 ग्राम्स अगर हम फ्रूट्स के पोर्शन की बात करें तो उसके अंदर हमारा एक एप्पल आ जाता है, हमारा एक कप में जितने कटे मिली जुले फ्रूट्स आ जाते हैं, या फ्रूट हमारी बगैर चीनी के बिल्कुल हमारी फ्रूट चाट आ जाती है, हमारी 3 अंजीरें आ जाती हैं उसके अंदर, हमारा जैसे कि अगर हम मेलन्स की बात करें तो हमारे एक कप मेलन्स आ जाते हैं। ये सारे 15 ग्राम्स हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, और ये इसको बढ़ा के इसको अपनी अफ्तारी के अंदर लेकर वो जो है अपनी जो मीठे की क्रेविंग है उसको भी वो खत्म कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा-सा ये बात करना चाहूँगी कि देखिए किस तरह के ऑप्शंस आप उनको अपनी ड्रिंक्स में बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे अगर वो किसी भी फ्रूट जूस से लेते हैं तो उसके अंदर उनको बहुत ही फास्ट रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि स्पाइक्स लेता है शुगर्स के अंदर, और कोई उसके अंदर फाइबर भी नहीं है, कैलोरीज भी ज़्यादा है। लेकिन इसी तरह से अगर वो कोई मिंट का ड्रिंक बना लेते हैं, उसके अंदर खूब खूब सारा एक मेलन की 1 से 2 पीस लेके उसके अंदर वो मिंट को ऐड कर लेते हैं तो कैलोरीज भी कम हो जाएगी और मिंट की फॉर्म में उनको फाइबर भी मिल जाएगा। तो उनको इस तरह से अपने ड्रिंक्स के बेहतरीन ऑप्शंस पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम दही की लस्सी की बात करते हैं, अगर वो हाफ कप दही से जो भी अपने लिए लस्सी बनाते हैं उसके अंदर से सिर्फ उनको 7 टू 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वहां से उनको 4 टू 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो उनको अपने ड्रिंक्स के भी इस तरह से ऑप्शंस पता होने चाहिए कि दूध को अगर वो डाइल्यूट कर लेते हैं तो दूध का शरबत बना लेते हैं, वो जबरदस्त उनके लिए ड्रिंक है। उनके लिए किसी भी ऐसे फ्रूट के अंदर जैसे कि अगर आपने मिंट ऐड कर लिया मेलन के अंदर तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। इसी तरह से लस्सी उनके लिए बहुत अच्छा ड्रिंक है। तो इस तरह के ऑप्शंस आप उनको ड्रिंक के लिए आप उनको बताएंगे। फिर इसी तरह से जो बात मैंने पिछली वाली स्लाइड में की थी, इसी से आप इन दोनों का न्यूट्रिएंट का कंपैरिजन देख सकते हैं कि लस्सी से उनको कितना कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम हो रहा है, साथ में प्रोटीन बढ़ रहा है, कैल्शियम बढ़ रहा है, कैलोरीज कम हो रही है। लेकिन अगर कोई फ्रूट जूस ले रहे हैं तो ये कुछ भी उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, सिर्फ फास्ट रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट ही बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह से अगर होल व्हीट चपाती की तरफ जाते हैं तो फाइबर उनको 6 ग्राम्स मिलता है, 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो तकरीबन हमारी 9 इंचेस की चपाती है। लेकिन इसी की जगह वो तंदूरी नान लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा फास्ट रिलीजिंग मिल रहा है, जिसमें कोई उनको ये सारा मैदे से बना हुआ होता है, जहां से उनको कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं बढ़ रहा है और फाइबर का अमाउंट भी कितना कम है। तो अच्छे ऑप्शंस का पता होना बेइंतहा जरूरी है। फिर इसी तरह से अगर फ्राइड रोल्स ले लेते हैं, कैलोरीज कितनी बढ़ती है, अगर 77 ग्राम के ले रहे 190 उनको कैलोरीज मिल जाती हैं। अगर वो दूसरा रोल ले रहे हैं होल व्हीट रोटी का रोल तो 128 उनको वहां से कैलोरीज मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 20 ग्राम्स मिल रहे हैं, यहाँ से 28 ग्राम्स मिल रहा है। फैट 6 ग्राम्स मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ 2 ग्राम्स है। फाइबर यहाँ से सिर्फ 2 ग्राम्स है, यहाँ से 4 ग्राम्स है। तो किस तरीके से अपने थोड़ी सी कुकिंग के अंदर चेंजेस ला के उन्होंने अपना अपने अपना जो भी उन्होंने मील लिया उसकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी बढ़ी, शुगर्स कंट्रोल होने में भी आसानी हुई, और वो एक जो क्रेविंग वाला एक जो फैक्टर आ रहा होता है कि भाई कोई अलग किस्म का खाना खाना है जिसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है, वो भी नहीं, वो भी उससे भी जो वो भी बिल्कुल एक नहीं होगा। इस तरीके से टेस्ट भी उनको एट द सेम टाइम मिल रहा है, एट द सेम टाइम उनको न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, और एट द सेम टाइम उनकी शुगर्स भी कंट्रोल हो रही है। इसी तरीके से अगर डीप फ्राइड पोटैटो समोसा की जगह अगर वो कोई बेक वेजिटेबल समोसा लेते तो कैलोरीज कम हो रही है, कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है, फाइबर बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा 1500 कैलोरीज की तरफ एक प्लान की तरफ आना चाहूंगी। ये तो इंडिविजुअलाइज्ड है कि मुझे पेशेंट को 1200 कैलोरीज का प्लान देना है, या 1500 का देना है, या 1800 का देना है। लेकिन मैं जितना भी दूंगी उसके अंदर 50% अपनी जितनी भी कैलोरीज है उसको अफ्तारी में रख के 40% सहरी में, और 15 to 20% उसको एक छोटा सा स्नैक जिसमें आप उसको अफ्तारी के 2 से 3 घंटे के बाद दे सकते हैं। ये जो हम कैलोरीज निकालेंगे, हम जो पेशेंट इंडिविजुअलाइज्ड रहेंगे तो जब का काम है, लेकिन एक जनरलाइज किस तरीके का मेन्यू होना चाहिए इस पर मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आप पराठा आपने लिया, ठीक है, एक पराठा अगर आप लेते हैं तो यहाँ से तकरीबन 45 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। जैसे 1500 अगर हम किसी को 45 to 50% कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं तो उसके अंदर तकरीबन हमारा 15 एक्सचेंजेस तक हमारी कार्बोहाइड्रेट की आ सकती हैं, और 15 to 18 एक्सचेंजेस, और हर हमारी कार्बोहाइड्रेट की एक्सचेंज तकरीबन 15 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट पे बेस करती है। ये सिंपल एक्सचेंज लिस्ट का रूल है। ठीक है, अब मेरी मर्जी है कि मैं एक टाइम पे अगर 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट देना चाह रही हूँ जो कि 3 एक्सचेंजेस पे बेस करता, तो उसके अंदर आपका तकरीबन छोटा सा एक पराठा आ गया। बड़ा पराठा ले लिया तो आपने 4 एक्सचेंजेस दे दिया आपने उसको कार्बोहाइड्रेट की, जो कि 60 ग्राम्स पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कैलोरीज बढ़ाते हैं। अगर मैं किसी को 1200 कैलोरीज का प्लान बना के दे रही हूँ तो मैं उनको 2 एक्सचेंजेस भी दे दूंगी, यानी कि 30 ग्राम्स भी एक वक्त में कार्बोहाइड्रेट दे सकती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को 1500 का प्लान दे रही हूँ तो वहां से मैं उसकी 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट दे दूंगी। इस थोड़ा सा
क्वांटिटी यहाँ से इस तरीके से बढ़ती है जिससे उनकी कैलोरीज खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। तो यहाँ से आपने एक पराठा दे दिया, पराठे के अंदर आपने 2 टीस्पून ऑयल लगाया, यहाँ से आपने कोई ना कोई चिकन का पीस रखा या फिश रखा या लीन मीट रखा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मील भी आ गया, तीनों आपके मेन फूड ग्रुप्स भी आ गए, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फैट भी आ गया। ये तीनों के कॉम्बिनेशन ने क्या काम किया कि स्लो के तीनों जब साथ मिलके गए तो देर तक एनर्जी लेवल देर तक मेंटेन रहे और हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स होने के चांसेस रिड्यूस हो गए। तो एम्फेसाइज पेशेंट को ये करना है कि एक सिंगल न्यूट्रिएंट की तरफ नहीं जाना कि सिंपल सुबह अपनी सहरी के लिए उठे और सिंपल ब्रेड स्लाइस के साथ सहरी कर ली, नहीं, वो अपना ये ख्याल रखे कि कोई ना कोई उनकी प्रोटीन की भी एडिशन हो रही हो और थोड़ा फैट भी जा रहा हो। योगर्ट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट का भी सोर्स है, प्रोटीन का भी सोर्स है, इसीलिए इसको स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी बहुत अच्छी है, तो सहरी में जरूर वो 1 कप दही का इस्तेमाल करें। अब आ गई अफ्तारी के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने अफ्तारी से बात की थी कि हमें पोर्शन साइज दोनों रखना बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट का, तो हम पेशेंट को ये समझाएंगे कि चनों की चाट ले रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप अपना छोले लेते, आप फ्रूट्स लेते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, दही बड़े भी, अब तीनों का उसका पोर्शन पता होना चाहिए। 1 प्याली उसने फ्रूट चाट ले ली, गुड, 1 प्याली उसने अपनी चनों की चाट ले ली और उसने थोड़े दही बड़े ले लिए। अब उसको तीनों से अपना कार्बोहाइड्रेट मिल गया, साथ में अगर उसने अब कोई दूसरा ऑप्शन बढ़ाना चाह रहा है तो कोशिश करे किसी लीन मीट से बढ़ाए, जैसे कि कोई शामी कबाब वगैरह ले, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ना बढ़ाए, अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट का लोड बढ़ जाएगा जिससे पोस्ट पेरेंट 2 घंटे के बाद अफ्तारी उसकी शुगर्स बढ़ने का रिस्क बढ़ेगा। जो हम स्प्रेड द लोड कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो बेसिकली यही चीज है कि जितने भी ऑप्शंस हों उसको अमाउंट के साथ फिक्स करके उसको अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, और उसके बाद वो कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट लेना भी चाह रहा है तो फिर वो अपने स्नैकिंग के तौर पे ले, ठीक है। यानी कि अगर 2-3 घंटे के बाद अगर आप उसको ऑप्शन देना भी चाह रहे हैं अफ्तारी के, तो वो खाने में, तो फिर वो उस वक्त जो भी, या तो अपना वही फ्रूट्स अगर वो बढ़ा के खाना चाह रहा है तो उस वक्त वो 2 घंटे के बाद अपनी कोई 30 ग्राम फ्रूट की सर्विंग ले ले, लेकिन उधर ना इंक्रीज करे, अफ्तारी के वक्त ना इंक्रीज करे, वरना अफ्तारी के वक्त क्या होगा कि सारे ऑप्शन ही बढ़ते चले जाएंगे जिससे पोस्ट पेरेंटल ब्लड शुगर्स बढ़ जाएगी। इसी तरह से ऑयल का बहुत ख्याल रखना जरूरी है, जैसे मैंने ऑयल का कहा कि कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ऑयल बढ़ने से उनकी कैलोरीज बढ़ जाती है और उनकी ना सिर्फ 2 घंटे बाद शुगर्स बढ़ती है बल्कि 4 घंटे बाद भी बढ़ रही होती है। तो ऑयल को वो कम रखे, और जितने मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, जितने भी आपको ड्रिंक्स के वो साथ में वो यहाँ पे इंक्लूड करें। डिनर कैसा होना चाहिए, डिनर उसका 1 कप मिक्स सैलेड्स होनी चाहिए और इसके साथ उसकी 1.5 चपाती हो सकती है। अगर वो राइस ले भी रहा है तो खूब सारी सैलेड्स ऐड करे ताकि राइस के साथ उसकी सैलेड्स मिलके उसको हम जो भी राइस है उसकी एक्शन को स्लो डाउन कर सकें। अगर वो सिंपल राइस ले लेगा तो तेजी से हजम हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर वो सैलेड्स ऐड कर लेगा तो वो देर तक ब्लड शुगर्स लेवल देर तक मेंटेन रहेंगे और साथ में वो राइस का अमाउंट भी कम कंज्यूम करेगा। मीट ले सकता है, क्या क्या चीजें इसमें अवॉइड करनी है, फैट फ्राइड है, फैटी फूड है जिसमें वो फूड्स में शुगर्स बहुत ज्यादा हैं, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा टी को अवॉइड करना है, टी का डायूरेटिक इफेक्ट होता है, प्यास लगती है, प्याज साथ में सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना है, व्हाइट फ्लावर हो गया, शुगर्स हो गया, शरबत हो गया, इन सबको बिल्कुल अवॉइड करना, जो जो ऑप्शंस बता उसकी तरफ आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने हेल्दी ईटिंग पैटर्न को वो अडॉप्ट करे ताकि जिसको वो रमजान के बाद भी कंटिन्यू कर सके। यस यस ओके। तो बस आखिर में ये कहना चाहूंगी तमाम अपने अपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो पीपल विद डायबिटीज जो रोजा रखना चाहते हैं, देखें अपने अपने हेल्दी ऑप्शंस पे ध्यान दें। अभी जितनी इम्यूनिटी को लेके बात हो रही है उसमें यही बात हो रही है कि इम्यूनिटी बेहतर आपकी हेल्दी ईटिंग से बनती है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स हो, तो ये सारी चीजें का जब कॉम्बिनेशन आता है तो उतना ही आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है। तो जो भी आप रमजान के दौरान जो हम गलतियां कर रहे होते हैं वो ना करें। गलतियां हमारी, जिस तरह से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारी गलतियां ये होती हैं कि हमारी चॉइसेस बहुत पुअर हो जाती हैं। हम सारा साल फ्राइड नहीं खाते, हम अगर कम भी खा रहे होंगे तो रोजे के दौरान अफ्तारी के वक्त वो डट के हमें फ्राइड आइटम खाना है, हमारी वो शुगरी ड्रिंक्स, हमारी फिजी ड्रिंक्स अफ्तारी में रखी जा रही होंगी, तो हमारे पुअर ऑप्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से शुगर्स खराब होती है। वही अगर आप अपने ऑप्शंस अच्छे कर लें तो ना सिर्फ आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी बल्कि आप उसको सारा साल भी कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।